Namaskar to everybody. On behalf of DAV United Foundation and Mera Doc organization, I welcome one and all to this webinar. Mainly, I would like to say that our parents, our children, our teachers, our principals, ROs, office bearers, everybody, welcome to this webinar. Now, you must be seeing some videos and some pictures on your screen. And so let me take the opportunity to introduce them to you all. The first name which I'm going to introduce, he doesn't need any introduction as far as DAV family is concerned. That is President DAV College Managing Committee, Shri Poonam Suri ji, and President Arya Pradeshik Pradinidhi Sabha, Chancellor DAV University, and now recently President Tankara, which is at Gujarat. Sir, on behalf of DAV United, I welcome you to this webinar, and I'm thankful to you that you accepted our request and took out some time from your busy schedule to be present here so that you can also give us some direction as far as this program is concerned. As far as the people who are not from DAV, I would like to add one more thing. Our President Sir Shri Poonam Suri ji is also a Padma awardee, and he has remained the managing editor of Milap newspaper, which was more than 100-year-old and which was getting circulated all over India. So thank you very much once again, sir. Then we have illustrious panel of doctors who are present here. I take the opportunity to introduce them one by one. Dr. Harsh Mahajan ji, welcome to this forum of DAV United Foundation and Mera Doc organization. Dr. Harsh Mahajan is founder and chief radiologist of Mahajan Imaging. He is also Padma awardee. He has traveled to so many countries and made the paper presentation as far as his research is concerned. His contribution in the field of medicine is immense. Taking the opportunity and understanding what kind of in-depth knowledge he has, we thought that he's the right person to be a panelist for today's deliberation. Welcome once again, Dr. Harsh Mahajan. Then we have on the panel Dr. Anup Mishra. Dr. Anup Mishra is Chairman, Fortis Center of Diabetes, and he is head of National Diabetes, Obesity, and Cholesterol Foundation. He has made a lot of contribution as far as field of medicine is concerned. And nowadays, whatever is happening around, his contribution in his own way is immense. Dr. Mishra, we welcome you on this panel, and we hope that you will be helping people like us who are not having any medical background in future as well. Welcome once again. Thank you, ma'am. Last but not the least, Dr. Neeraj Jain. Dr. Neeraj Jain has studied in Maulana Azad Medical College. He has done his master's and his graduation from there. Then he was in UK from the year 1989 to 1993. And right now, he is Chairman, Department of Chest Medicine, Gangaram Hospital. Dr. Jain, welcome on this panel. Now, with this kind of illustrious panel,
I must say there is one more doctor who is going to help me in the deliberations, Dr. Aditya Mathur. Welcome on this panel. And we shall be dealing with the deliberations together. Thank you so much, ma'am. Now, in order to keep the ball rolling and get the blessings of our elders, I feel it's very essential for us to listen to our mentor, Dr. Poonam Suri, on why he thought of having this panel. Just little bit I want to say, a few days back, he called me and he said, in March 2020, we all were busy how we can shift from offline classes to online classes, how to make our manpower, that is teachers, techno-savvy. In 21, it was a huge confusion. So all our regions were searching for cylinders of oxygen to concentrators and helping people who were in need of that. And then he put this question to me, when this Omicron fellow has come, what is DAV doing for that? And it was his brainchild that there are many questions in the minds of people who are in and around us, and they need to have some clarification and clearance of doubts as far as their questions are concerned. So keeping that in mind, and with that direction, we conceptualized this webinar. With these words, Sir, President Sir, I request you to please preside over and talk to us about how to go about it. Thank you so much, and sir. Thank you very much, ma'am. Thank you. On behalf of the DAV family, I of course welcome Dr. Anup Mishra, Dr. Neeraj Jain, and of course our very own Dr. Harsh Bahajan, who have come today together to remove certain doubts that have come up in the minds of people. लेकिन इतनी एमिनेंट पैनल के सामने जब मैं बैठा हूं इनके साथ, तो मेरे दिल में एक छोटा सा एक उर्दू का शेर आ गया। हर्ष महाजन जी, पड़ा रहने दे किसी कोने में मुझे ए माली, पड़ा रहने दे मुझे किसी कोने में ए माली, कांटा ही सही मिला तो हूं इस गुलिस्तान में। इतने एमिनेंट लोग, इतने विद्वान लोग, ऐसे पढ़े लिखे लोग जिन्होंने सारी दुनिया के अंदर अपना नाम कमाया है फील्ड ऑफ मेडिसिन के अंदर, आज वो सब इकट्ठे हुए हैं ताकि मेरे डीएवी परिवार के अंदर जो शंकाएं पैदा हो रही हैं उसको वो दूर कर सके। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। Dear doctors, let me introduce your audience also to you. Your audience, dear sirs, is of teachers, the alumni of DAV, the students of DAV, the parents, and our associates, the office bearers, the managing committee members. It's a huge, huge audience that you have today. DAV is a very large family. So in short, we will call them a DAV family, and that brings all of us together. This entire family is working together with only one goal, the goal of man making. इसीलिए डीएवी में हम डॉक्टर साहब शिक्षा नहीं देते, सिर्फ शिक्षा नहीं है यहाँ, शिक्षा लिटरेसी देती है। शिक्षा teaches you how to make a living. हम देते हैं विद्या, which teaches you how to make a life. We try and make lives in DAV. हम एक संस्कार भरते हैं बच्चों के अंदर, और हमें पूरा विश्वास है
कि बच्चा तो भगवान बनाता है, लेकिन उस बच्चे में मानवता डीएवी भरता है। वो जो डीएवी भरता है, उसी से वो एक विद्या लेकर बाहर आता है। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, 919 of them, with more than 100,000 staff working together. All these institutions, किसी के अंदर भी कोई भी इंस्टीट्यूशन शिक्षालय नहीं है, ये विद्यालय है। जितने भी हैं ये विद्यालय है, यहाँ पे विद्या दी जाती है। और मेरे जो टीचर्स हैं, इनके अंदर एक अलग किस्म की भावना है। डीएवी की टीचर एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। मैं उनके लिए भी छोटा सा उर्दू का शेर जरूर कहूंगा कि सीखना मुश्किल है, जुस्तजू चाहिए। आप सब समझ रहे हैं, जुस्तजू, जिज्ञासा, डिजायर टू लर्न, द अर्ज टू नो। सीखना मुश्किल है, जुस्तजू चाहिए। सिखाना और भी मुश्किल है, खाक में मिटने की तमन्ना चाहिए। ये है मेरे टीचर्स के अंदर एक तमन्ना कि वो अपने आप को मिटा दे, अपने आप को मिट्टी में मिला दे, ताकि मेरे भारतवर्ष का जो भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, उनका भविष्य उज्जवल होता चला जाए। इस भावना के साथ डीएवी आगे बढ़ता है। फिर 2020 में आ गया कोरोना। इस कोरोना ने बहुत धक्का दिया। It took away lives, it took away livelihood. It affected everyone, and DAV was no exception. Dr. Misra, you would be sad to know that DAV alone, we lost 1,174 associates of ours. Our teachers, our principals, some children, some parents, somehow or the other, DAV was affected in a very bad manner. But that did not restrain the DAV spirit. My teachers united. Everybody got together. They donated money. They collected funds. We gave 6.5 crores of rupees to the Prime Minister Fund. The DAV teachers, with the help of the other associates and staff and other members, students as well, masks in lakhs, not in hundreds or thousands, but in lakhs, were made by various DAV teachers and sent to the Indian Army, to various armed forces, to Air Force, etc., and also to the local police, whichever state they are in. DAV, by the way, is in 23 states in the country. So in those states, the police, everyone, DAV was working hand in hand with them. You people, the doctors, were the corona warriors, the frontline warriors. But my teachers were not very far behind. Outside the hospitals, inside the hospitals, you were looking after them. Outside the hospitals, bottle of water, a packet of biscuits, maybe some lunch to be offered free to the relatives who are standing in the sun, the patients who are waiting various cylinders to come, patients who are not being able to get various medicines. Whatever little help we could give, in our own little way, we tried to do whatever we could. Many of our institutions, in Bihar especially, were used as isolation centers for the COVID people, especially the labor that had migrated from Delhi and Punjab. They were all kept in our schools there for their isolation period to get over. DAV kept on working like this throughout the period. And now has come Omicron. In the last 2 waves that came in, we lost a lot, but the spirit never died. But it did affect us, mental health as well as financial health. In every way, it was affecting the society. Now with Omicron, of course, we had high hopes that maybe year 2022 will take it all away from us and we will be able to begin again afresh and start teaching the children. That process of man making that DAV does
Teaching can be done online, yes, but the student cannot see the teacher behave the way he should, where a gentleman should behave. Then he follows. Students are left alone in their rooms, only with their idiot boxes or iPads or smartphones. Some are used and some are misused. So in every way, some kind of a loss was taking place. Mental health, we lost a lot. So many complaints we received regarding mental health from our parents, fights in between them, the children being affected at home. How do we help them? There were problems. And now with this Omicron coming up, of course, God willing, it will remain a very, if I may not use the word mild, a milder disease, but it is a disease, all right. And it also takes you away for 7 days, puts you in a lone room. And of course, एक benefit है जरूर अकेले बैठने का कमरे में dear teachers. इसमें बुरे नहीं मानना चाहिए. मैं एक पढ़ रहा था एक जगह पे कि if you do not talk to yourself at least once every day, you will miss out meeting the most intelligent person. You are the most intelligent person and you must meet yourself. And Corona or this Omicron has given you an opportunity to do so. I think in Delhi, practically every home has been hit by it. What to do? How do I diagnose? How do I get to know whether this is a common cough or is it taking me to Omicron? Do I need treatment? Do I just need कि मैं gargle कर लूं या कुछ home remedy use कर लूं? क्या करूं? Should I shift to antibiotic? Should I not shift to antibiotic? Should I go to the hospital? Should I get a test done? Should I not get a test done? So many questions come in our minds. And it's in everybody's mind. People do not know what to do, especially when Omicron hits a small child. At that time, the parents, उनको समझ ही नहीं आती हम क्या करें. बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि बस आदमी गुम सा जाता है. तो इस हालात के अंदर मैंने 2 दिन पहले एक प्रोग्राम देखा जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एंड मेरा डॉक ने जॉइंटली होस्ट किया था. ऐसे ही जूम के ऊपर आई जॉइंट इन एंड आई सॉ दैट प्रोग्राम. मुझे बहुत इंफॉर्मेटिव लगा. मुझे लगा कि इसके अंदर बहुत सारे सवाल हमारे जो दिल में उठते हैं उनके जवाब मिल रहे हैं. तो मैंने कहा अगर मुझे मिल रहे हैं तो मेरे जितने एसोसिएट्स हैं, मेरे कुलीग्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, इन सबको भी तो इनके जवाब मिलने चाहिए. बहुत सारे तो आपको जवाब तभी मिल जाएंगे जब ये डॉक्टर्स आपको अपनी बातें बताएंगे. उसके बाद भी अगर आपके दिल में कोई सवाल उठता हो, प्लीज डू नॉट हेजिटेट, आस्क क्वेश्चन. The best way to get knowledge is to ask questions. You know it, you are teachers. That is what you keep telling your students also. So please ask questions, as many as you can. And I'm sure Mera Doc will try and help us in getting those various answers. I'm extremely grateful to Mera Doc. ये जो कुछ भी आपको सेवाएं दे रहे हैं, they are free of cost. You are getting free consultation. Absolutely, you have to do nothing. If you register with them, that again is free. There is no cost in registration also. So please ask questions. जो भी आप चाहें इनसे पूछिए, वो आपको पूरी तरह से जवाब देने की कोशिश करेंगे. और इतने एमिनेंट डॉक्टर्स आए हुए हैं, मेरा दिल ये चाहता है कि हम टाइम न जाया करें. मैं अब और ज्यादा ना बोलता हुआ अब रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर निशा पेशेंट को कि वो प्रोग्राम और आगे बढ़ाएं. और मैं कोरोना वॉरियर्स फ्रंट लाइन एंड कोरोना वॉरियर्स सेकंड लाइन दोनों को रूबरू करना चाहता हूं कि आपस में रूबरू हो और आपस में बातें करो. धन्यवाद. Ma'am, you're on mute. Thanks a lot, sir, for the words of wisdom. And it definitely took us to our memory lanes, what happened in
2020 or 21. And now, since, as you rightly said, let's not waste the time and go to our panelists and become wiser from before. Now, I request Dr. Aditya to please take over. Dr. Aditya. Thank you, ma'am. Good evening to everyone. We at Meradoc greatly appreciate all of you taking the time to join us for today's session with our panel of esteemed COVID warriors. Like ma'am introduced, we have on our panel Dr. Mahajan, whose guidance has been invaluable in the creation and evolution of the Meradoc platform, Dr. Anup Mishra and Dr. Neeraj Jain, who are key members of Meradoc's advisory board. So let me introduce Meradoc and this exclusive service that Dr. Suri and senior members of the DAV United Foundation have insisted that Meradoc provide to its members. Then I will reintroduce our panel to you, and then I will hand it over to Dr. Peshin to moderate the session. So Meradoc is an integrated telemedicine platform offering everything from a GP or specialist doctor consultation to mental health, wellness, pharmacy, pathology, and radiology services. What defines us is at the core of our offering, a GP is present who focuses on the well-being of the family and makes the consultation or advice much more tailored to an individual and a family. As we all tackle the third wave, we are focused and committed to providing the complimentary consultation services to you and your family on everything from vaccination to medicine, resulting in one speedy recovery. We ensure that we try and coordinate to get medicines delivered to you, organize tests, vaccination, home isolation programs, and if even answering general questions. So a link will be shared with you, as exclusive link for DAV members, where you can all log in and register and start accessing our doctors immediately. You can call our IVR number, book an appointment immediately. Our doctors are available 24/7, round the clock for you. It need not be a very serious medical issue. Even if you have some doubt regarding medication, a slight fever, or when to get where to get your vaccination, please go ahead and use this service. So now coming to the panel. So I'll start with Dr. Jain. He completed his graduation from MAMC, as we all know. He received his formal training in pulmonology and chest medicine at Charing Cross Hospital in Westminster, London, where he worked from 1989 to 93. He has been practicing as a pulmonologist in Delhi since 93 and currently is the chairman, Department of Chest Medicine at Sir Gangaram Hospital, New Delhi since 2001. Dr. Anup Mishra is the chairman of Forte CDoc Center for Excellence for Diabetes, Metabolic Diseases and Endocrinology, New Delhi, and the director of National Diabetes, Obesity and Cholesterol Foundation and the Diabetes Foundation of India. He has more than 30 years of experience in teaching, service, research, and community health intervention programs, and has published more than 350 scientific papers and chapters in the national and international journals of books. He has received numerous awards and 31 named orations. He has been awarded the highest award for medicine in India, which is the Sir Dr. B.C. Roy Award, and India's prestigious national honor, the Padma Shri, in 2007. He has received the Outstanding Investigator Award from World India Diabetes Foundation in 2013. Now coming to Dr. Mahajan, he is an eminent radiologist and a pioneer in the field of MRI in India, having set up one of India's first MRI centers in 1991. He is the founder and chief radiologist of Mahajan Imaging, which runs a chain of diagnostic centers in North India. He is the chairman of CARING, the Center for Advanced Research in Imaging, Neurosciences, and Genomics. He has lectured around the world and is a postgraduate teacher and examiner with keen interest in research, especially in the field of artificial intelligence. He graduated from MAMC New Delhi. He did his post-graduation from PGI Chandigarh and did a fellowship in MRI from the MD Anderson Center in Houston, Texas in '88. He too was awarded the Padma Shri by the Government of India in 2002 and has been the national president of Indian Radiological and Imaging Association in 2003. And he is the current president of NAT Health, the Healthcare Federation of India. More importantly, he is the son of Principal T.R. Gupta, who set up the very first public school of the DAVs, and even now at the age of 91 years, is the vice president of DAV College Management Committee. Coming to our moderator for the evening, I don't think she needs an introduction, but here it is. Dr. Nisha Peshin, she's the director of public schools and academics in DAV. She has played a path-breaking role as curriculum development officer in DAV CMC and has been instrumental in designing and developing textbooks and educational material from nursery till class 8 for all DAV schools. And she handles the curriculum for over 550 DAV public schools in India. Over to you, ma'am. Thank you so much, Aditya. In fact,
the chat box is getting completed, and I have told my people that please stop that, because otherwise it's totally confusing me what to ask and what not to ask. So some questions which are coming, I would like to start from Dr. Anup Mishra ji. The first question which has come from the teachers, one of the teacher from Orissa, is how do the symptoms of Omicron differ from those of other variants? Thank you, ma'am. Thank you, Suri Saab, for that wonderful initial introduction. And I'm getting to know the students by the chat. So chat function is open on the right side, and I can see how many students are logged in and what kind of conversation is going on. First conversation that came was that none of us are wearing a mask. So I bore the mask immediately after that. But of course, yeah, everybody has a mask, but of course, the speech is much clearer without the mask. So that's for the time being. The symptoms of, the first 1.5 years, the symptoms of the the COVID-19 was a little different, because the number of other viruses, variants were involved, and they were producing almost similar symptoms. And they were loss of taste, loss of smell, and then followed by marked cough and shortness of breath, and then high fever, and then chest infection. These symptoms progressed in a manner like this, that initially there was fever and cough and loss of taste and smell, and then over next 7 days, they progress somewhat, and the peaking at around 6 to 7 days. And, what Harsh taught us, that do not do any CT scans on the first day, because 7th day, the pneumonia will occur. And that's what we have been doing earlier. But this wave, it is a little different. And here the symptoms are, most of my colleagues have it now, is that a little bit of running nose, a little bit of sore throat, a fatigue, and maybe a little headache, inability to concentrate, but not prominent cough. Cough is not very prominent. And the concentration of symptoms, the maximal symptoms, will occur in first 3 days, and after which it goes down. Now, fever is also not a very prominent part. Of course, it will occur in, these symptoms will differ in some people, people who are predisposed to develop higher chances of complications. The symptoms may be different, but most of the people are having these symptoms. And by 3rd day, most of the symptoms decrease in severity. And by 7th day, probably you have fatigue and a little bit of listlessness that persists, and then it goes away. So these are the two different variants, two different set of symptoms. And we can recognize Omicron by the symptoms in first 2 to 3 days, which is good for, in the sense that most of the symptoms are mild in most of the people, and that perhaps in people as young as you are listening to us, no medication probably will be required. Thank you so much, Dr. Saab. Now, my next question, which has come from Sujata Mishra, it is, what are the effects of Omicron on lungs? And this question is for Dr. Neeraj Jain. Thank you, Harsh. Thank you, Mera Doc, and everyone who's joined us today. The lungs, fortunately, like Dr. Mishra said, are not being affected by the Omicron variant. And even though there are 2 or 3 subsets that we've seen now with Omicron, there is a class of patients who are presenting with very high fever and severe headaches for the first 2-3 days, and then they start subsiding. And very rightly, Dr. Mishra said, 3rd to 7th day, most people are showing a full recovery. Fortunately, breathlessness and cough, which were very, very prominent last year, and we can never forget last year, April and May, all of us went through that, and all of us either lost somebody known to us or somebody who got very severely affected. Fortunately, the Omicron variant is not doing that. And so far, the indication is that it is not going to affect the lungs in a big way.
A word of caution, I think if we learn from the lessons that we have had in the last 2 years, this all viruses mutate. This one has been mutating very rapidly. Just because Omicron has been a mild variant, and we've been lucky so far that we haven't lost lives purely due to COVID. We've lost lives in people who've had other serious ailments, but not primarily due to COVID in healthy people, doesn't mean that we let our guard down. We repeat this very often. I can never repeat it enough. We have to stay very, very cautious. We have to keep a watch. This virus may change its character again. I'm hoping it won't. And we have also seen one thing, that the vaccination that people got last year, people who got infected last year in addition to the vaccine, are also getting the Omicron infection, but it is mild. So the vaccine and the previous infections have probably protected us to a large degree. So the vaccine is still the most important, sort of defense mechanism that we have against this virus. But if we continue to remain careful, then yes, the cumulative immunity will protect us in future from severe disease. But to end again, right now, the lungs are not a major issue, and I hope it stays that way. Thank you so much, Dr. Jain. Now, there is a question from Mr. Sahu, and the question is for Dr. Harsh. Are current diagnostic techniques as effective as diagnosing Omicron? Yes. At the outset, thank you very much of DAVs for doing it. I've lived my whole life with the DAVs, with my father being first a teacher, then a principal. And it's really wonderful being here. Now, the answer to your question. The diagnostic tools that we have today are able to diagnose the infection from Omicron. Predominantly, the best tool that is used is the RT-PCR test, which I'm sure everyone has become familiar with this name. And just as it was able to diagnose earlier with the ancestral variant, which came from China in 2020, then we got the Alpha variant, which was first diagnosed in England, and then the Delta variant, which was first diagnosed in India. Just as the RT-PCR was able to diagnose those illnesses, those infections, similarly, it is able to diagnose Omicron as well. The difference is that RT-PCR, as the tests that we have today, the testing kits that we have today, we cannot differentiate between a Delta variant and a Omicron. For both of them, it will come positive, but with the present testing kits, we are unable to differentiate. But that really doesn't matter, because the isolation that we have to do after infection, the treatment that is done after infection is all based on symptoms and signs, on your oxygen level, on how high the temperature is, how bad the cough is. So it will not in any way make any difference. If you come up with a positive test, the chance today predominantly is that it will be Omicron, because Omicron, as we know, is at least 4 times more infectious as compared to Delta, and that's why it's spreading so quickly. So just leave it to your doctor. You come up with a positive test, and our testing kits will not miss Omicron. They will pick it up if it's positive, especially the RT-PCR. And so don't worry about it. Let the treatment happen. Predominantly, as has been said both by Dr. Mishra as well as by Dr. Jain, this appears to be, and also by Mr. Suri, Dr. Suri, that this appears to be a milder variety as compared to the previous Delta variant. Let's not say it is mild, because no infection is mild in those who are more at risk, the elderly, those with comorbidities.
even this milder variety is causing a lot of problems. And as has been highlighted, the vaccine is helping, because if we see globally around the world, और अगर हम अपने देश में भी देखें, तो जो जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, ज्यादातर 90-95% लोग वो हैं जो हॉस्पिटल के अंदर हैं. सो द वैक्सीन इज प्रोटेक्टिंग अस, हमें बचा रही है. और इससे ये भी हमें मालूम होता है कि हमें डिले नहीं करनी. अगर हमारा वैक्सीन लगाने के लिए नंबर आ गया है तो हमें जाके वैक्सीन लगवानी है. और ये स्पेशली जो 15 और 18 साल के बच्चे सुन रहे हैं अभी हमें, अगर आपको आपका नंबर तो आ ही गया, गवर्नमेंट ने कहा कि 15 और 18 साल के बीच के बच्चे वैक्सीन लगवाएं, तो आप अपने जो भी निकट आपके, चाहे स्कूल में है, चाहे कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कोई हॉस्पिटल है पास में, उसमें जाके आप वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन बचा रही है. वैक्सीन इन्फेक्शन से इतना नहीं बचा रही. ये जो ओमिक्रॉन वायरस है, ये इसको हम कहते हैं इम्यून एस्केप. ये आपकी इम्यूनिटी वैक्सीन से बनी हुई है, उसको भी भेद लेता है. इट इज एबल टू स्टिल इन्फेक्ट यू. पर जो वैक्सीन काम कर रही है वो सीरियस डिजीज नहीं होने दे रही, वो आपको हॉस्पिटल में नहीं ले जा रही, वो आपकी डेथ नहीं कर रही. तो इन बच्चों को मैं कहूंगा कि आप जाके वैक्सीन जरूर लगवाइए. और दूसरा एक टेस्ट मैं संक्षिप्त में बता देता हूं, वो है रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसको रैट फॉर शॉर्ट कहते हैं. ये वो टेस्ट भी है जो घरों में किया जा सकता है. जो आपको टेस्टिंग, होम टेस्टिंग किट मिल रहे हैं, वो रैपिड एंटीजन टेस्ट है. ये भी एक अच्छा टेस्ट है घर में करने के लिए. खुद आप सैंपल ले सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं. ये उतना सेंसिटिव नहीं है जितना कि आरटीपीसीआर टेस्ट है. पर अगर किसी को एक्टिव डिजीज हो गई है तो उसमें पॉजिटिव आने के 50-60% इसका पॉसिबिलिटी है. तो ये भी एक अच्छा टेस्ट है, जो अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार हो गया तो घर में आप कर सकते हैं. और अगर ये नेगेटिव आया और आपको लक्षण है ओमिक्रॉन के, तो उसके बाद नेगेटिव आने पे भी आप आरटीपीसीआर टेस्ट कराइए, क्योंकि अगर लक्षण है तो ये किन्हीं परसेंटेज केसों में मिस भी कर सकता है. पर जहां तक सवाल था, ओमिक्रॉन भी डायग्नोज हो रहा है. आज के जो अवेलेबल टेस्ट है, चाहे वो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो या वो आरटीपीसीआर टेस्ट हो. Thank Thank you so much, Dr. Saab. There is a concern in this question, and this question is addressed to Dr. Anup Mishra. It is written that first the father had the COVID in 2021, and lungs are still affected. Of course, treatment is happening, but lungs are still affected. Now the son, who is nearly 35-year-old, उनको ओमिक्रॉन हो गया है. तो उनका ये एक डर है कि जो उनका फादर है वो अभी तक भी बिल्कुल ठीक नहीं हो गए लंग इन्फेक्शन से, तो अब उनके बेटे को भी हो गया है. क्या इसका भी ऐसा ही है कि एक प्रोलॉन्ग इम्पैक्ट रहेगा, साल लग जाएगा लंग्स को वापस बैक टू नॉर्मल आने में? डॉक्टर अनूप. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज ऐसे पेशेंट्स हमारे यहाँ भी सामने आ रहे हैं. इससे पहले, इससे क्वेश्चन आंसर करने पहले मैं देख रहा था कमेंट्स. कई लोगों को ये नहीं पता है कि ओमाइक्रॉन क्या है. ओमाइक्रॉन एक कोविड-19 वायरस जो कि बराबर चेंज होता जा रहा है, उसका एक और रूप है और सबसे लेटेस्ट रूप है. और उसमें पहले के वायरस से 34, अगर जो लोग आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हो, 34 पॉइंट म्यूटेशंस हैं. मतलब पहले के वायरस से उसका रूप पूरा चेंज हो गया. और म्यूटेशंस का मतलब ये है कि वो जितने भी इम्यूनिटी है, बॉडी की एंटीबॉडीज हैं या टी सेल्स हैं, वो इम्यूनिटी को बाईपास कर देता है. और
जैसा डॉक्टर हर्ष महाजन ने बताया कि इवन वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज बनते हैं जो प्रोटेक्टिव है उसको भी बाईपास कर रहा है। और ये फिर से बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस इसमें हैं कि क्या बहुत सीवियर है, और इस क्वेश्चन जो आपने पूछा उसका भी इस पर ताल्लुक है कि सीवियर नहीं ज्यादातर होता है, लेकिन कुछ लोगों में ये सीवियर हो सकता है। यही अलग अलग रूप लेते हैं, हर वायरस का एक ही प्रेजेंटेशन नहीं होता, अलग अलग लोगों में अलग अलग। जो 90 ईयर के हैं उसमें अलग होगा, और जो 20 साल के हैं, जो आप जैसे यंग है, अगर किसी को हो गया तो आपको शायद कुछ भी ना हो। तो इस बारे में आप गौर करिएगा। अब मैडम ने जो पूछा सवाल वो बहुत अच्छा सवाल है। उसमें यह है कि एक फैमिली मेंबर जो है उसका लंग काफी खराब हो गया है, क्योंकि पहले डेल्टा वेरिएंट से उनको निमोनिया हो गया, और उसको लंग जो है वो जैसे कि ब्रिक के जैसे जैसे ईंटे की तरह हो गए, उसको फाइब्रोसिस कहते हैं। डॉक्टर नीरज जैन इसके विशेषज्ञ हैं। तो फाइब्रोसिस उनको हो गई, वो सांस भी प्रॉबेबली बहुत अच्छी तरह से नहीं ले पा रहे हैं, और उनमें कोई और इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस है, चाहे वो ओमाइक्रॉन हो या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो उनको बचाना एक बात है और अपने को बचाना भी दूसरी बात है। लेकिन आप 35 साल के हैं और आपको कोई भी, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, कई तरह की डिजीजेज जो कि सिवियरिटी को बढ़ाती हैं, यानी कि और ज्यादा तेज कर देती हैं वायरस से जो डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट डिजीज है, या किसी का लंग पहले से खराब हो जो मैंने अभी मेंशन किया, या कोई ऐसी दवाओं पर हो जो उनकी इम्यूनिटी कम कर दे, या जिसकी किसी अंग का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, और जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, जो कि बिल्कुल बेड रिडन है किसी कारण से, ये सारे लोगों में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो अब क्या करना चाहिए इनको? ये लाइकली है कि अगर इनमें से कोई डिजीज इनको 35 साल के व्यक्ति को नहीं है, तो आप में 95% सर्टेनिटी से मैं कह सकता हूं कि डिजीज बड़ी माइल्ड होगी। लेकिन आपके फादर को अगर होगी तो वो तेज होगी। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आइसोलेट हो जाना चाहिए एक अलग कमरे में। आपको N95 मास्क, जो बेस्ट मास्क होते हैं, उसको पहनकर बैठना चाहिए, और आपके फादर को भी N95 मास्क पहनना चाहिए। आपके फादर आपके रूम से जितना दूर हो, अगर घर थोड़ा सा बड़ा है तो बिल्कुल कोने में अगर रूम है तो वहां चले जाएं, और खिड़कियां वगैरह सब उधर खोल लें। आप भी खिड़कियां खोल लीजिए, लेकिन बीच का दरवाजा बंद रखिएगा। और साथ में आप अपने, अगर N95 मास्क नहीं ले रहे तो हर 12 घंटे में आपको दूसरा 3 लेयर्ड सर्जिकल मास्क को चेंज करना चाहिए। आपको दरवाजे के थ्रू जो भी खाना है वगैरह वो सब रखना है, और मास्क जब फेंकें तो उसको काट लें और डिस्ट्रॉय कर दें एक छोटे से एक आप बैग में, और उसको फिर डिस्कार्ड कर दें। लाइकली ये होता है इन्फेक्शन पीरियड कि आपके फीवर या जो भी आपके इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं उससे 2 दिन पहले आप इन्फेक्शियस हो जाते हो, यानी कि वायरस सिक्रीट होने लगता है। और करीब करीब 5 से 7 दिन, करीब करीब, देखिए हर में ये नहीं लागू होता है, 5 से 7 दिन आपका वायरस सिक्रीट होता रहता है। यानी कि करीब 7 दिन आपके, क्योंकि फादर बहुत सिक हैं, आपको 7 दिन तो उनसे डेफिनेट आइसोलेट होना बेटर। ये रहेगा 10 डेज आइसोलेट हुई है, क्योंकि चांसेस है 5% कि आफ्टर 7 डेज के आपका गले से वायरस अभी भी निकल रहा है। आपको लंग नहीं ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ओमाइक्रॉन ज्यादातर गले में रहता है और नीचे लंग में नहीं जाता है। तो आई होप ये डिस्कशन से आपके सारे आंसर्स मिल गए। Thank you so much, Doctor. It's a question from Mr. Mathur. His age is 63 and he's saying that मैंने booster ले लिया and second day I started having some symptoms, cough और थोड़ा सा cold सा लगा, और मैंने घर में ही टेस्ट किया and it turned out to be positive. तो बूस्टर डोज लगाने के बाद भी मैं क्यों पॉजिटिव हो गया? और दिस क्वेश्चन इज फॉर डॉक्टर नीरज जैन। ये ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें लोगों ने अपना बूस्टर डोज लिया और उसके बाद सिम्टम्स भी हुए और वो पॉजिटिव हुए। यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है, ये जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है ये कम्युनिटी स्प्रेड है इस टाइम। इट इज लाइक एन एयरबॉर्न डिजीज, ये हवा में ऑलमोस्ट। तभी आप देखेंगे कि
एक घर में एक इंसान को होता है तो 3-4 दिन में ऑलमोस्ट सब पॉजिटिव हो जाते हैं, इवन दो आइसोलेट करते हैं लोग अपने आप को। और चांसेस कि हमारे अंदर ये वायरस है और हमें नहीं पता, वो चांसेस बहुत होते हैं। जब भी हम बूस्टर लगवाते हैं तो बॉडी का एक अपना रिएक्शन होता है जो जो वैक्सीन के अगेंस्ट होता है। उसमें आपको बुखार भी आ सकता है, बॉडी एक भी हो सकता है, और उस दौरान अगर आप टेस्ट करेंगे तो हो सकता है पॉजिटिव हो फॉर 2 रीजंस। वन, कि आपके अंदर ऑलरेडी ये वायरस था एंड चांस की बात है आपको नहीं पता था और आपने बूस्टर लगवा लिया। सो वो एक सिनेरियो है जो बहुत देख रहे हैं हम इस टाइम पे। सो उसमें फिक्र करने वाली बात नहीं है। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, आपको एक नॉर्मल माइल्ड इन्फेक्शन की तरह ही ट्रीट करना है अपने आप को, और उसी तरह से ट्रीट करना है जैसे आपने बूस्टर नहीं लगवाया है। तो डॉक्टर साहब, क्या फिर से टेस्ट कराने की जरूरत है? अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो लोग ओमिक्रॉन से अफेक्ट हो रहे हैं उनमें पीसीआर टेस्ट कुछ लोगों में 2 हफ्ते 3 हफ्ते में भी पॉजिटिव रह रहा है। उसका ये मतलब नहीं कि वो इन्फेक्टिव हैं। जो गाइडलाइंस आई हैं और वो एक एविडेंस बेस्ड है कि आप, ये एक कंफ्यूजन जो लोगों के माइंड में कि 7 दिन करना है या 10 दिन करना है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन में तो हमें 7 दिन कहा गया कि भाई 7 दिन के बाद आप आइसोलेशन बंद कर सकते हो। ये ठीक नहीं है। ये केस टू केस वेरी करेगा। रूल्स वही हैं आइसोलेशन के। अगर आपको 4-5 दिन बुखार रहा है तो आप 7वें दिन आइसोलेट नहीं कर सकते, आइसोलेशन से बाहर नहीं आ सकते। तो आपको अगर 10 दिन निकल गए हैं आइसोलेशन में और आपको कम से कम 72 घंटे कोई सिम्टम नहीं रहा, कोई बुखार नहीं और कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी है, तो आप आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। बट आपकी मास्क प्रिकॉशंस फिर भी रहेंगी। इसका यह मतलब नहीं कि आप इन्फेक्शन से रिकवर कर गए हैं तो अपना मास्क उतार के घूम सकते हैं, क्योंकि आप वायरस दोबारा किसी को दे भी सकते हैं और आप भी प्रोन हैं दोबारा इन्फेक्शन, और ये प्रिकॉशंस नहीं भूलने चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों को अपना माइंड मेकअप कर लेना चाहिए कि अगर इन्फेक्शन हुआ है तो कम से कम 10 दिन शायद मुझे आइसोलेट करना पड़े, और सही भी वही है। हेल्थ केयर वर्कर्स इतने सारे इफेक्ट हुए हैं इस बारी हमारे ओमिक्रॉन से कि हमने ये देखा कि 7वें दिन बहुत लोगों को कोई भी सिम्टम नहीं हुआ, 1 दिन सिम्टम हुए, कोई सिम्टम नहीं हुए, 5 दिन वो ठीक रहते हैं। तो उन लोगों को 7वें दिन हम टेस्ट करके वापस काम पे ला सकते हैं, क्योंकि आफ्टरऑल एक सिस्टम है जो चलना चाहिए। लेकिन लोगों को 10 दिन कम से कम प्रिपेयर्ड होना चाहिए आइसोलेशन के लिए, और उसके बाद ही बाहर आना चाहिए। फिर भी अगर वो पॉजिटिव रहते हैं, यूजुअली वो इन्फेक्ट नहीं करेंगे लोगों को, लेकिन मास्क नहीं छोड़ना उसमें भी। बड़ा ही इंडियन सेटअप के लिए तो ये बहुत ही कॉमन है। कुछ भी बीमार आदमी हो जाए तो 10 लोग आप 10 नुस्खे अपने बता देते हैं। कोई कहते हैं काढ़ा पी लो, कोई कहते हैं लेमन ग्रास गर्म पानी में डाल दो, कोई कहता है कोई सप्लीमेंट ले लो। सो दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाट मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स इफ एनी शुड वन टेक टू बिल्ड द इम्यूनिटी? मतलब ये बहुत नुस्खे आते जाते हैं, तो क्या मेडिकली कोई प्रूवन नुस्खा है क्या कि हमें ये कर? कोई कहता है कि लेमन का पानी पीते जाओ, गर्म पानी पियो, काढ़ा पियो, या कोई सप्लीमेंट खाओ जिससे आपको ताकत आ जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इज देयर एनी सच थिंग और इट इज जस्ट अ मिथ? Sorry, is that for me also? So it's for Dr. Harsh Mahajan. Okay. Though probably Dr. Neeraj or Dr. Anoop could better answer this, but what I'll say is that Dr. Harsh, they can add something and supplement. Yes, your they will answer. add. They will definitely add. What I will say that all these are notions which don't have any evidence base. किसी ने हमें ये करके नहीं दिखाया कि 100 आदमियों में उसने काढ़ा पिलाया, 100 को नहीं दिया और दोनों में फर्क आया, काढ़ा वाले बच गए और दूसरे नहीं बचे। ऐसी कोई स्टडी कहीं भी दुनिया में हुई नहीं है। Having said that, I would say कि अगर काढ़ा पीने से आपको अच्छा लगता है और अगर हमें ये लगता है कि शायद हम बच जाएंगे, तो आप काढ़ा जरूर पीजिए, आप लेमन ग्रास जरूर पीजिए, as long as
It is not something which can harm you. There is no problem in having it. पर इससे ये नहीं सोचिए कि अब मैं मास्क नहीं डालूंगा क्योंकि मैंने काढ़ा पी लिया है, मेरे को तो हो ही नहीं सकता. ये रत्ती भर भी नहीं सोचिए. आपको प्रिकॉशन वही लेने हैं जो आप पहले ले रहे थे. आपको बचना है इस इन्फेक्शन से, और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कि अब 2 साल हो गए उसको दोहरा रहे हैं, और मास्क डालना है. मास्क भी डॉक्टर अनूप ने बताया कि N95 मास्क डालिए. N95 मास्क हमारे देश में बहुत आसानी से मिल रहा है. और ये मैं बता दूं 2020 में जब शुरू हुआ था, इंडिया में जीरो मैन्युफैक्चरिंग थी इसकी, और 500 रुपए दे के भी मास्क N95 का नहीं मिलता था. आज 20-25 रुपए में ये आसानी से मिल रहे हैं. केमिस्ट के पास मिल रहे हैं, शायद आपके पास जो किराने की दुकान है उस पे भी मिल जाएंगे, और ऑनलाइन तो मिल ही रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं. और आई थिंक अभी जो लोग सुन रहे हैं उनमें हर कोई सक्षम होगा कि वो N95 मास्क खरीद सके. उसके ऊपर आप चाहे सर्जिकल मास्क डाल लें, अगर आप किसी भीड़ भड़ाके वाली जगह में जा रहे हैं, वैसे तो जाना ही नहीं चाहिए, पर अगर जाना ही पड़े तो आप उसके ऊपर सर्जिकल मास्क डाल लीजिए. वो नहीं है तो आप कपड़े का मास्क डाल लीजिए. पर ये नहीं सोचिए मैंने कपड़े का मास्क डाल लिया, मैंने गमछा ले लिया, मैंने कोई रुमाल बांध लिया तो उससे मैं बच जाऊंगा. वो बिल्कुल नहीं बचाएंगे आपको. ये अब तो प्रूव ही हो गया. और ये जो ओमिक्रॉन इन्फेक्शन है, कई क्वेश्चन इसके पूछे जा रहे हैं, इसमें फर्क ये है, ये बहुत ही इन्फेक्शियस है. अगर एक घर में आ गया तो सबको ये संक्रमित करेगा ही. इट इज गोइंग टू इन्फेक्ट एवरीवन. बाकी इसमें अच्छी बात ये है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें 90% के करीब एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता हमें इन्फेक्शन हो गया. तो ऑन दैट स्कोर इट इज माइल्डर, बट इट इज माइल्डर. यही अगर ओमिक्रॉन आया होता मार्च 2021 में, अप्रैल 2021 में, तो शायद हम माइल्डर बात ना कर रहे होते, क्योंकि तब हम प्रोटेक्टेड नहीं थे. और ये भी याद रखें कि जितने अधिक इन्फेक्शन होंगे उतना चांस है कि ये अपना रूप बदल के कुछ और बन जाएगा. इट में बिकम ओमिक्रॉन से कुछ और नया वेरिएंट आ जाएगा. सो अब आप अपने आप को बचाइए. काढ़ा, हलवा, देसी घी, जो चीज अच्छी लगती है जरूर उसका सेवन करें. प्लीज हैव इट, बट देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव दैट दे विल सेव यू. ऑफ कोर्स वो आपको ताकतवर बनाते हैं तो वेल एंड गुड, बट आपने देखा है कि बड़े से बड़े पहलवान को भी हुआ, और जब डेल्टा वायरस था तब तो हर तरह के लोग इसके चपेट में आए, हॉस्पिटल जाना पड़ा, और कईयों की मौत भी हुई, यंगस्टर्स की भी हुई. सो प्लीज हैव इट, बट डोंट थिंक दैट it will prevent the infection or it will make the infection less severe. Take all precautions. Dr. Neeraj, Dr. Anup, anything you would like to add to this? Yeah, so for children, there are two kinds of supplements that people give, or doctors give, or other people give. One is what Dr. Harsh Mahajan has been talking about, कि कुछ आयुर्वेदिक काढ़ा है और कुछ बाकी आयुर्वेदिक टैबलेट्स भी हैं. इनका कोई साइंटिफिक बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं है. छोटी मोटी स्टडी करके लोगों ने ये भी कह दिया कि ये भी खा लो, वो भी खा लो, उसका कोई स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं है. और उसको आप, डॉक्टर हर्ष महाजन तो बड़े हम्बल तरीके से उन्होंने बात करी कि आप ले लीजिए, लेकिन मैं तो ये भी नहीं कहता कि काढ़ा लेने की आपको जरूरत है. अब बात आई कि इसकी एलोपैथिक मेडिसिन की और सप्लीमेंट्स की. तो देखिए, एलोपैथिक मेडिसिन भी कुछ उस कैटेगरी में आ रही हैं जो कि आयुर्वेदिक का आप वो करते हैं. अब 3-4 मेन मेडिसिन को देखिए जो कि हो सकता है बच्चों आपने भी ली हो या आपके फादर मदर ने ली हो. एक जिंक होती है, सबको दी गई है. पिछली बार जिंक का पूरी बिक्री इंडिया में बहुत ही हाई थी. दूसरा है विटामिन सी, जो कि 40 साल से उसको इम्यून बूस्टर कहते हैं.
और तीसरा है विटामिन डी, 3 विटामिन और मल्टीविटामिन की टैबलेट्स अलग है। तो देखिए जिंक का कुछ बेसिक स्टडी जो हम कहते हैं ना एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में, उसमें पाया है कि वो ओमाइक्रॉन की सॉरी नॉट ओमाइक्रॉन, वो कोविड-19 की ग्रोथ को कुछ कम करता है। और ये सब एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। एक्चुअली अगर आप जो ह्यूमन स्टडीज देखें, क्योंकि आदमियों में जो इन्फेक्टेड है उनमें करी गई, उनको जिंक देकर और जिंक ना देकर देखा गया, उसमें कोई फर्क नहीं। और रिसेंट और भी एनालिसिस आई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से कि सारी स्टडीज को हम कंपेयर करें तो विटामिन सी का भी कोई रोल नहीं है। तो ले सकते हैं, इसको कहते हैं प्लेसिबो। जैसे कि जैसे डॉक्टर महाजन ने कहा भाई काढ़ा ले लो, और वैसे ही लोग कह रहे हैं भाई जिंक ले लो, विटामिन सी ले लो, शायद असर हो जाए। मैं तो नहीं रिकमेंड करता हूँ। तो अब क्या चीज वर्क कर सकती, 3 चीजें उसमें। एक है विटामिन डी। अब इसका रोल कुछ है, कुछ तो इम्यूनिटी में है, इसमें तो कोई शक नहीं। और विटामिन डी 90% इंडियंस में कम होता है। तो हमको चाहिए कि अगर आप करा सकें विटामिन डी का लेवल तो अच्छा है, अदरवाइज आप ले लेंगे भी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विटामिन डी एक इफ एट ऑल इट विल बेनिफिट यू इन सम वे और द अदर, इट मे नॉट बी लाइफ सेवर। दूसरा है B12। B12 बड़ा एसेंशियल होता है इम्यूनिटी के सेल्स के लिए भी और नर्व्स वगैरह के लिए भी। B12 60% इंडियंस में कम होता है, स्पेशली जब आप वेजिटेरियन है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मेरे में कम है, ये मुझको पता है। तो B12 की टैबलेट्स अलग से मिलती हैं। अगर आप कम है B12 में, या आपको कोई अभी रिसेंटली किसी बीमारी से उठे हैं, आप कैटाबॉलिक, सो कॉल्ड कैटाबॉलिक स्टेट में, आपकी बॉडी थोड़ा सा उतना बन नहीं रही है, आपको B12 लेने की शायद जरूरत पड़े, या अपने डॉक्टर से आप पूछे। और तीसरी चीज जो कि सब लोग लेना चाहिए, तीसरी और चौथी चीज, प्रोटीन। इसमें कोई शक नहीं कि प्रोटीन आप ज्यादा लेंगे, आपके बॉडी में प्रोटीन होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। और ज्यादातर इंडियंस की प्रोटीन लेवल कम होते हैं, तो आप प्रोटीन दीजिए। उसमें दाल भी है, उसमें मीट है, मछली है, उसमें सोयाबीन भी है, उसमें न्यूट्रीनजेट भी है, ये सारी चीजें, पनीर वगैरह सब प्रोटीन है। और लास्ट चीज जो कि WHO ने भी कही है, जब WHO कोई चीज कहता है बड़ा सोच विचार के करता है, कि जो आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले रहे हैं, वो यूजुअल WHO की इनिशियल हिदायत थी 3 से 5 सर्विंग तक लेना है, वो पहले प्री कोविड-19 पीरियड। अब कहते हैं 5 to 9 सर्विंग्स, मतलब एक अगर सेब खाइए तो 1 सर्विंग हो, इसी तरह वेजिटेबल 1 कटोरी खाइए 1 सर्विंग हो। So take as much protein and as much fruits and vegetables as you can. This will never harm you. You build up. And finally, that's my advice, and I do every day. And Dr. Harsh Mahajan is very fit. He does every day, is exercise. If you are fitter, unlikely that many, leave aside COVID-19, many bacteria can attack you because you have that fitness to ward off all these infections. So, अगर आप बाहर नहीं जा सकते, आप ऑन द स्पॉट जंपिंग करिए। आप लड़कियां वो करती हैं स्किपिंग, बहुत सारे यूट्यूब पर आते हैं जब आप डांस कर सकते हैं, आप वेट्स उठा सकते हैं, लड़कों के वेट्स उठाना, मसल्स बनानी है। तो बी फिट इन दिस, लॉट्स ऑफ fruits and vegetables and lots of protein. Thank you so much. Time का पता ही नहीं चला. I have crossed the deadline of 7 o'clock. I think President Sir wants to ask some question. Sir, please go ahead. To Dr. Mishra. Dr. साहब, आप medicines के बारे में बात कर रहे थे. Sometime back, about 6-7 months back, we heard on TV and also read in the newspapers कि DRDO ने कोई 2DG एक नया कोई मेडिसिन निकाली थी, कि फर्स्ट इंडियन मेडिसिन अगेंस्ट कोविड-19. उसके बाद उसका कुछ नजर नहीं आया, क्या हुआ? Can you throw some light on it, sir? Thank you, sir, for asking this question. 1 साल पहले की बात है जब DRDO ने 2DG डीऑक्सीग्लूकोज को यूज किया. ये कोई नई मेडिसिन नहीं है सर, और मैं और डॉक्टर हर्ष महाजन अक्सर बात करते रहते हैं इस बारे में. ये करीब 25 साल पुरानी मेडिसिन है. किसी और चीजों में, कैंसर वगैरह में ट्राई करी गई और उसके बाद उसको निकाल दिया गया, नहीं ट्राई करी गई.
इसका मेन इनका वो बड़ा अच्छा है, वैसे बेसिक थ्योरी बड़ी अच्छी है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस होता है तो ग्लूकोज यूज करता है, और ये ड्यू 2-डीऑक्सी ग्लूकोज है जो कि एक्चुअली वो काम नहीं करता, जो ग्लूकोज है एनर्जी नहीं देता और वायरस मर जाएंगे। लेकिन सर इसमें प्रॉपर जांच नहीं हुई, जैसा कि डॉक्टर महाजन ने पहले कहा कि भाई काढ़े की कोई जांच नहीं हुई, आयुर्वेदिक बाकी जांच नहीं हुई। मैं तो कहता हूं कि इसकी भी पूरी तरह से जांच नहीं हुई। एक स्टडी जो डीआरडीओ ने करी थी वो भी एक अधूरापन वाली स्टडी थी, उसमें पूरे पैरामीटर्स ठीक से स्टडी नहीं किए थे। तो ना उनके साइंस बहुत अच्छी थी, ना उसके बाद फॉलोअप बड़ा अच्छा था, और ना उसके बाद कोई भी मार्केटिंग अच्छी है। तो वो अभी वहीं को वहीं धरा हुआ है सर, उसका कोई क्लिनिकल यूज हम लोगों ने नहीं किया हुआ है, और मुझको लगता भी नहीं है कि आगे ये जाएगा। Sir, any other question from your side? सर एक अब सवाल मैं जरूर पूछना चाहता हूँ कि इसका कभी अंत भी होगा जी, कि will this become a lifestyle from now on? Sir, Sir, I will, sir, just a minute. In fact, there are nearly 10-12 questions. When Absolutely. will COVID end? Absolutely. This is the question. And again, there is one more question, that some countries have already declared that it is not pandemic anymore and it is endemic. So what is the view of our panelists? Sir, प्रधान जी ने जो अभी सवाल किया, ये सवाल भी उनके viewers के ही आंसर आ जाएंगे इसमें. Please, sir. Dr. Mahajan or Dr. Jain can answer, then I can, whatever is remaining, if there is anything. Dr. Mahajan, please. I think Dr. Neeraj Jain is most competent. No, Neeraj ji, please go ahead. no. Because he can see the future. I wish I could. I think if we go back in history, we had the influenza pandemic, decades ago, 100 years ago. And influenza never went away from our community. Influenza is still part of our, viruses and bacteria that we live with. And every year, people are still getting, thousands and thousands of people get the influenza vaccine, which is developed every year, because the influenza virus keeps changing its character also. So to protect people against, at least the susceptible population against influenza, वो vaccine हर साल नहीं बनती है. आप SARS, H1N1 ले लीजिए. H1N1 कितना जोर से आया था, कितने लोग डरे थे, हम लोग आइसोलेट करते थे पेशेंट्स को. अब भी H1N1 आता है, हर 3-4 साल में आता है. पेशेंट्स आते हैं, आईसीयू में एडमिट होते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं होती. सो इन अ नटशेल, वायरसेस कभी जाएंगी नहीं. तो आप ये बोलो कि जी कोरोना खत्म हो जाएगा कि नहीं, खत्म नहीं होगा. बट जो कुछ कंट्रीज कह रही है कि कुछ, वो कह रहे हैं कि हम इसको ऑलरेडी एंडेमिक मान रहे हैं. हम एंडेमिक का मतलब है कि अब ये हमारी सोसाइटी में रहेगा, कभी ज्यादा कभी कम इन्फेक्शन होंगी. जब होंगी तो हम देखेंगे हमने क्या करना है. लेकिन जो पैंडेमिक वाली डेफिनेशन है, जिसमें हम और बहुत सारे मेजर्स लेते हैं, वो अब अप्लाई नहीं करेंगे हम. सो कोरोना भी ऑलमोस्ट सर्टेनली उसी रास्ते जाएगा. ये हमारी कम्युनिटी में रहेगा. कौन सा वेरिएंट रहता है, कितनी देर वो सिवियर डिजीज करता है, वो अभी शायद बहुत जल्दी है कहने को. मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये इस बस ओमिक्रॉन के साथ खत्म हो जाएगा. बार बार जो हम वार्निंग दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि वी आर लकी कि हमारे इम्यूनिटी, वैक्सीनेशंस, लास्ट ईयर की इन्फेक्शन से ओमिक्रॉन ने हमारे को एक नॉन सीरियस डिजीज की तरह अफेक्ट करा है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये इसी तरह रहेगा. हो सकता है कल को एक और वेरिएंट आ जाए जो इस इम्यूनिटी को भी बाईपास कर जाए. तो प्रिकॉशंस लेते जाइए, बट ये वायरस जाएगा नहीं. द शॉर्ट आंसर इज ये खत्म नहीं होगा. तो हम लोगों को और उम्मीद भी नहीं करनी हमें खत्म हो. हमें ये उम्मीद करनी है कि सब लोग इम्यून हो जाएं, सब लोग अपने आप को वैक्सीनेट करें. और अगर ससेप्टेबल पॉपुलेशन को हर साल एक वैक्सीन लेनी भी पड़ती है तो वो भी एक हमारी एक एडिशनल वैक्सीन हो जाएगी, ताकि हम आगे के लिए अपने आप को बचा सकें. इन अदर वर्ड सर कि ये कोरोना नहीं तो कोई ना कोई रोना तो रहेगा ही. बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है. पर सर उसको रोना ज्यादा देर रखना नहीं चाहिए. यू आर एब्सोल्युटली राइट. बिल्कुल ठीक बात है. उसको टैकल करना पड़ता है बस. उसको ये कहना चाहिए सर कि करो ना और डरो ना.
Actually, the questions are so many, and I'm getting the message that the time is over. And if there is any quick question from President Sir or anybody, because there are some questions related to the infection in children also. Some parents are concerned whether they should get their child vaccinated or they should wait, so that Anup, why don't you take that? That's an important question. There are three quick issues I will take, and it's not taking more than 2 minutes. एक तो बीच में आया, कई लोगों ने पूछा कि होम टेस्ट और पीसीआर आरटीपीसीआर जो डॉक्टर महाजन ने मेंशन किया, तो उसमें फर्क क्या है और क्या दोनों सेम है? होम टेस्ट घर में आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, 250 रुपए का अवेलेबल है आजकल, और वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, इसका मतलब वो ट्रू है, और अगर नेगेटिव है आपको आरटीपीसीआर करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल गोल्ड स्टैंडर्ड आरटीपीसीआर है, जो डॉक्टर महाजन ने करा। नंबर 2 क्वेश्चन आए थे बूस्टर के बारे में, और कहा कि बूस्टर लेने की जरूरत क्या है। देखिए 6 महीने में सारे एंटीबॉडी जो इनिशियल आपने लिया था वैक्सीन, वो 6 महीने में करीब करीब नीचे आते जा रहे हैं। उन लोगों में ज्यादा आ रहे हैं जिनको डायबिटीज या और इम्यूनोसप्रेस्ड डिजीज है, और उसमें जरूर कोरोना फिर से हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब यह है कि हमको उसको बूस्ट करना पड़ेगा, और वो बूस्टर से संभव है। तो जो लोग एलिजिबल है बूस्टर से, मस्ट गो फॉर बूस्टर। नंबर 3 जो चीज है, जो कि साउथ अफ्रीका में इस बार देखा गया था कि यंग लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रही है, उसमें से कुछ बच्चे भी हैं, और ये यूएस में भी देखा गया कि बच्चे कुछ एडमिट हो रहे हैं। लेकिन आप अगर ओवरऑल एक मोटे मोटे तौर पर देखिए कि अगर 1000 लोगों में ये हुआ है, तो उसमें से मुश्किल से 1 या 2 या 4 5 बच्चे होंगे, बहुत कम बच्चे हैं, और जो भी बच्चे हैं उनको हमारे यहाँ एटलीस्ट बहुत ज्यादा डिजीज नहीं हो रही। हमारे जो पीडियाट्रिशियन है हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल में, उनसे बराबर मैं बात करता रहता हूँ, वो हमारे कोविड ग्रुप में है, और उन्होंने बताया कि कोई भी एडमिशन ज्यादा नहीं है। लोग पेरेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं नेचुरली, उसमें कोई शक नहीं है, वो ज्यादा भावुक हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस डिजीज नहीं हो रही है। लेकिन पॉसिबिलिटी जरूर है, और आप वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है अगर 13 से 15 ईयर्स के उसमें वर्ग में, जहां जहां गवर्नमेंट जो कहती जा रही है, तो प्लीज वैक्सीनेट करते रहिए। सर मुझे लगता है और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में अगर पेरेंट्स को आप बता दें, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर हर्ष, आप लोग भी बता दें कि वैक्सीनेशन से पेरेंट्स को डरना नहीं है, बिकॉज देयर आर क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग दैट वी आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट वेदर वी शुड गेट आवर चाइल्ड वैक्सीनेटेड, बिकॉज इट इज नॉट right now, it's all at the testing stage and we don't want our child to be a guinea pig. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए कितने करोड़ों डोजेस लग गए, अडल्ट्स में लग गए, बच्चों में भी मेरे ख्याल 4 करोड़ के करीब बच्चों में इंजेक्शन लग गए हैं एवर सिंस इट स्टार्टेड। सो इसमें देखिए कई पेरेंट्स ऐसे थे जो कि वेट कर रहे थे कि वैक्सीन आए और हम अपने बच्चे को लगवाएं, और ये आपको मानना पड़ेगा कि ये कोई एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे नहीं है। आज इनफैक्ट 16 तारीख को 1 साल पूरा हो गया, कोवैक्सिन लग रहा है, और कोवैक्सिन इज अ होल वायरस, इनएक्टिवेटेड वायरस। ऐसे वैक्सीन कम से कम नहीं 70-80 साल से लग रहे हैं। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कई वर्षों से यूज हो रहा है। सो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ये तो हम लकी हैं अपने कंट्री में कि ये यही निर्मित हुआ, यहाँ अवेलेबल है। आप देखिए 100 कंट्रीज के अंदर तो हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और हमें चांस मिले और हम ना लगवाएं तो ये आई मे बी अ लिटिल हार्श, बट ये पेरेंट्स जो हैं ये अपने बच्चे के साथ डिससर्विस कर रहे हैं। आपको अवेलेबल है, आप लगवाइए, आप बच्चे को सेफ रखिए। और अब 4 करोड़ बच्चों में तो लग गए, और किसी ने सुना क्या कोई साइड इफेक्ट सीरियस हुआ हो? हाँ, थोड़ा बुखार, थोड़ा दर्द, वो हो सकता है, वो तो अडल्ट्स में भी होता है। तो ये वैक्सीन लगवाना बहुत ही जरूरी है। हैविंग सेड दैट, और जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा, डॉक्टर नीरज जैन ने भी कहा, बच्चे जो हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्कूल खुले या ना खुले, और 2 साल हो गए स्कूल बंद है, बच्चे जा नहीं पा रहे,
तो बच्चों में वैसे ही डिजीज बहुत सीरियस नहीं होती है। और ओमिक्रॉन जो है वो देखा गया है कि इट इज नॉट अ वेरी सीरियस डिजीज। 5 साल से कम के बच्चों में कुछ देखा गया है कि कुछ चंद बच्चों को एडमिशन की जरूरत हुई है, हमारे देश में नहीं, अमेरिका में। और जो हमें पहले इंजेक्शन लगे हैं, वैक्सीन लगे हैं, उनसे भी कुछ क्रॉस रिएक्टिविटी के कारण हमें इम्यूनिटी मिलती है। पहले जो जुकाम सर्दी हुई, जुकाम हुआ, जुकाम से भी पता चल रहा है कि कुछ हमें इम्यूनिटी मिलती है उन बच्चों में भी जिनको की वैक्सीन नहीं लगा है। मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो जैसे ही ये वेव थम जाएगा, कम हो जाएगा, तो स्कूल शुड ओपन वेरी क्विकली, बिकॉज बच्चे एक दूसरे से मिले, टीचर्स से मिले, घर से बाहर निकले। जो इमोशनल स्ट्रेस एक बिल्डअप हो गया है उसको भी रिलीज चाहिए। और डॉक्टर नीरज भी कुछ कहना चाह रहे हैं इसके बारे में। यस डॉक्टर नीरज। नहीं, जस्ट टू ऐड टू दैट, पेरेंट्स की एप्रीहेंशन हो गई है बिकॉज सारी इश्यूज डिस्कशन सोशल मीडिया पे है, सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन, साइड इफेक्ट्स ऑफ द वैक्सीन। आप ये क्यों भूल गए कि आज से 30 साल पहले जितनी वैक्सीन बच्चे को लगती थी उससे 10 गुना वैक्सीन अब लगती हैं, वो हमारी वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल में आ गई हैं। जैसे जैसे नई नई वैक्सीन डेवलप हुई हैं, हम पैदा होते ही बच्चे को वैक्सीन लगनी शुरू होती है और वो पहले 5 साल में कितनी वैक्सीन लगवाता है बच्चा। सो वैक्सीन की सेफ्टी एस्टैब्लिश हो चुकी है, लाइक डॉक्टर महाजन से। आई डोंट थिंक कोई एप्रीहेंशन होनी चाहिए। और हम लोगों के पास अब एविडेंस है, रेट्रोस्पेक्टिव एविडेंस है कि वैक्सीन ने ही हमको बचाया है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अगर हम बचे हैं तो वैक्सीन से या इन्फेक्शन की इम्यूनिटी से, इन दोनों में चूज करना पड़े तो आई वुड रादर टेक अ वैक्सीन rather than take the risk of having an infection and hope that I will develop immunity with that. So it is very important for parents to go ahead. ये recommendation तभी आती हैं जब इसकी safety establish करी जाती है। कोई भी body इस तरह rash decision नहीं लेगी कि बच्चों को वैक्सीन लगवाइए। उन्होंने तभी करा है जब ये इसकी safety establish हो चुकी है। President sir, I would like you also to appeal to all the parents once that they should take their child and children for vaccination, and those adults who are unvaccinated, please, they should also go ahead and get themselves vaccinated. वैक्सीनेशन सबको जरूर करवा लेनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, मेरी ग्रैंड डॉटर अभी 15 की हुई है और अभी 2 दिन पहले उसकी वैक्सीनेशन भी हुई है, राइट ऑन हर नियरिंग हर बर्थडे। सो इट इज नेसेसरी कि जितनी जल्दी हो सके बच्चे को वैक्सीनेशन लगवाइए, ये एक उनकी सेफ्टी है। सबको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो कि दिल में एक डर रहता है उन बच्चों का जो 15 साल से छोटे हैं, जिनको अभी वैक्सीन की बारी नहीं आई, उनके लिए डर है। लेकिन भगवान की कोई ऐसी कृपा है कि उन बच्चों के अंदर अपने आप ही एक कोई शक्ति है जिससे कि दे आर बीइंग एबल टू फाइट द डिजीज मच बेटर देन द एडल्ट्स। बट all said, please get the vaccination done as soon as possible, and whenever they permit, 13 साल करेंगे, 10 साल करेंगे, immediately वो वाले बच्चे भी पहुंच जाए। जहां तक हमारा ताल्लुक है स्कूल्स का, मैं डॉक्टर निशा पेशेंट से और हमारे सभी डायरेक्टर्स अपने अपने जोन के अंदर पूरा कोशिश कीजिए कि हमारे स्कूल्स को ही वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाकर वहां पे बच्चों को इन कंफर्ट वैक्सीनेशन दिया जा सके और उनके पेरेंट्स को भी महसूस हो कि हाँ उनका बच्चा सुरक्षित है। Thank you so much, sir. And before now, as I said, that the questions are so many, these are now in thousands. Nisha ji, there's one question I think we should ask Dr. Anoop. That's coming again and again, which is Omicron equal to normal fever and cold? Sir, it's coming again and again. हाँ, ये मेरे ख्याल 100 बार ये क्वेश्चन आया है, तो डॉक्टर अनूप मिश्रा इस पे कुछ रोशनी डालें। हाँ जी, प्लीज। देखिए, जो यूजुअल कोल्ड होता है, जो बड़े ही माइल्ड वायरस से होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है 99.9%, और केवल 0.1 लोगों में थोड़ा सा जिनको कि ऑलरेडी लंग की प्रॉब्लम है, एस्थमा है या कोई
सिगरेट से कोई स्मोकिंग से डैमेज हो गया या हार्ट डिजीज है, उनमें थोड़ा सा शायद परेशान ये करे। तो वो अगर आप लोगों ने सबको हमको हुआ है तो वो कोई प्रॉब्लम करता नहीं है। लेकिन जहां तक ओमाइक्रॉन की बात है, आपने, अगर आप न्यूज पढ़ रहे हैं तो आपने सुना होगा कि अगर यूएस का डाटा, जो कि सबसे ज्यादा हम बिलीव कर सकते हैं क्योंकि उनका डाटा सिस्टम बड़ा अच्छा है, तो उसमें जब ओमाइक्रॉन के केसेस बढ़े उसके एक हफ्ते के बाद एडमिशंस हॉस्पिटल में बढ़ते चले गए और अभी तक बढ़ रहे हैं। चाहे उनका ओमाइक्रॉन का नाव कर्व नीचे है, तब भी उनके हॉस्पिटल के एडमिशन बढ़ रहे हैं, क्योंकि 5-6 दिन बाद कुछ लोगों में, जिनमें की प्रॉब्लम्स और भी हैं, उनकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, और मैंने देखा कई डायबिटीज के इसमें सवाल भी हैं और फाइब्रोसिस, लंग के डैमेज के सवाल भी, उन लोगों में ये इसने प्रॉब्लम और कर दी और उसमें इन्फेक्शन भी कर दिया, उनका ऑक्सीजन भी कम कर दिया, उनका ब्लड प्रेशर पल्स को भी खराब कर दिया और उनको ऑक्सीजन की जरूरत और शायद वेंटिलेशन की जरूरत भी पड़ी। तो देखिए ये काफी स्टार्क डिफरेंस है। ये जरूरी नहीं है कि आप में कुछ हो, आप में शायद वैसे ही रहे जैसे कि कोल्ड होता है, लेकिन अगर आपके फादर वृद्ध हैं या कोई और वृद्ध हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं, उनमें वो चीज नहीं होगी जो आप में है और उनमें चीजें आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए इस चीज का ध्यान रखते हुए हमको बिल्कुल क्लियर प्रिकॉशंस इसके लिए लेनी है, जैसा डॉक्टर महाजन और डॉक्टर जैन ने बताया। और इसमें कोई भी शक नहीं कि आज जो हम इंडिया में देख रहे हैं, कम हॉस्पिटलाइजेशन, हमारे हॉस्पिटल के आईसीयू खाली अभी ज्यादा पड़े हुए हैं, 1-2 पेशेंट एडमिटेड हैं, वो ज्यादातर वैक्सीनेशन के कारण है। और आपने बॉम्बे का डाटा देखा होगा, जितने लोग एडमिट हैं उसमें से केवल आई थिंक 97 लोग एडमिट थे या ऐसा कुछ, उसमें 87 तो वो थे जो वैक्सीन जिन्होंने नहीं ली और 10 थे बस जो वैक्सीनेटेड थे। तो ये अहमियत है वैक्सीनेशन की। आपके फादर मदर को जरूर वैक्सीन लेनी चाहिए और आप अभी एलिजिबल हैं तो अभी लीजिए, और अभी जो कम उम्र के बच्चों का आ रहा है, जो कि डॉक्टर अरोड़ा ने वो किया है, अगले महीने तक शायद आ जाए, उनको भी लेनी चाहिए वैक्सीनेशन। Thank you so much. And before I thank the panel, over to Aditya ji, Dr. Aditya Mathur, over to you. Thank you, ma'am, and thank you so much, everyone, for a wonderful session. I think we have answered a lot of questions, जो commonly asked question है, but हम पूछ नहीं पाते डॉक्टरों से. We have been able to ask a lot of questions. अभी भी लगभग 840 questions हैं जो आंसर नहीं कर पाए हैं हम अभी नीचे. 840 Zoom पे हैं डॉक्टर साहब, बट देयर आर, हमने दूसरी 2 चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि वहां तो फ्लड आ गया, उनको ब्लॉक कर दिया है बिकॉज वी कुड नॉट हैंडल दोज 2 चैनल्स, फेसबुक एंड यूट्यूब, वहां पे बहुत ज्यादा आ गया है. सो ऑन बिहाफ ऑफ मेराडॉक फैमिली, आप सबके लिए बहुत ही धन्यवाद कि पैनलिस्ट हमारे जो आज आके हमें समय दे सके. जिन लोगों के क्वेश्चन नहीं आंसर हुए हैं वो प्लीज हमें दे कैन रीच आउट टू अस एट आवर ईमेल आईडीज और दे कैन बुक एन अपॉइंटमेंट विद आवर मेराडॉक जीपीज. इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मैंने देखे थे जो एग्जाम्स के रिलेटेड थे, जो एग्जाम रिलेटेड बच्चों को घबराहट हो रही है, कब एग्जाम होगा, कैसे हम दे पाएंगे. उसके लिए कोई भी आपको कभी बात करनी हो किसी से, कभी भी हमारे प्लीज डॉक्टर से बात कर सकते हैं 24 घंटे. लिंक आपके साथ चैट में शेयर किया गया है. प्लीज रजिस्टर एवरीवन, अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को रजिस्टर करिए. प्लीज यूज दिस फैसिलिटी, इट इज फ्री फॉर यू 24/7 अराउंड द क्लॉक, एनी टाइम एनीवेयर, एनी क्वेश्चंस. मीनवाइल एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस टू आवर पैनलिस्ट जो आप किसी के पास भी होंगे, प्लीज मेल कर दीजिएगा contact@meradoc.com पे. हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस आंसर किए जाएं हमारे स्पेशलिस्ट के थ्रू. इससे पहले तुम लॉग ऑफ करो, बहुत सारे क्वेश्चन है कि मेराडॉक क्या है, तो एक बार फिर से बता दो. बिल्कुल. तो मेराडॉक एक प्लेटफॉर्म है टेली हेल्थ का, टेली मेडिसिन का. हमारा फोकस है जनरल फिजिशियन पे, जो जीपी डॉक्टर्स कहलाए जाते हैं. वी आर ऑफरिंग फ्री कंसल्टेशंस विद आवर ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस जीपीज जो बहुत ही ज्यादा आजकल डील कर रहे हैं कोविड केसेस के लिए. डॉक्टर मिस्टर सूरी एंड डॉक्टर महाजन की ग्रेशियसनेस से हम ये सर्विस डीएवी फैमिली को फ्री में ऑफर कर रहे हैं. आपके लिए लिंक नीचे चैट में है. अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को कोई भी सिम्टम हो या कोई भी मेडिकल क्वेरी या हेल्प चाहिए, प्लीज आप कभी भी हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं.
हम आपकी सहायता करेंगे ट्रीटमेंट में, मेडिसिन, टेस्ट, जो भी चीज हो हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प की जाए। भले ही कोई सिम्टम हो, कोई ट्रीटमेंट हो या कोई सवाल ही पूछना हो वैक्सीनेशन के रिलेटेड ही, प्लीज रीच आउट टू आवर डॉक्टर्स, रीच आउट टू अस, डू रजिस्टर ऑन द लिंक एंड वी आर देयर फॉर यू 24/7। आदित्य, क्या ये सिर्फ ओमिक्रॉन या कोविड के बारे ही पूछ सकते हैं या किसी भी बीमारी के बारे? नहीं सर, लाइक आई सेड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इवन एग्जाम रिलेटेड कोई स्ट्रेस है उसके भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, एनी इश्यूज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, एनी अदर फैमिली इशू, जरूरी नहीं है कि जुकाम खांसी ही हो, पेट में दर्द भी हो सकता है। बहुत चीजें जो निगलेक्ट हो जाती है आजकल, सब चीज ओमिक्रॉन के चक्कर में बहुत सारी बीमारियां हैं जो आगे नहीं आ पा रही हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज फील फ्री, यू कैन रीच आउट टू आवर डॉक्टर्स एंड वी आर हियर टू हेल्प यू। इसमें एक और भी बेनिफिट है जी कि जो भी एडवाइस मिलेगी प्रोफेशनल से मिलेगी। बिल्कुल सर। rather than asking कोई ये नीम हकीम खतरा है जान, उनसे पूछकर कोई इलाज कर लिया जाए। जैसे डॉक्टर महाजन ने भी कहा कि कोई काढ़ा पी लो, ये पी लो, इन चीजों से ठीक है, जब तक उनके अंदर रिसर्च नहीं होती कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इट इज बेटर टू सीक द एडवाइस ऑफ अ प्रोफेशनल हु इज ट्रेन्ड इन दैट मैटर टू टेल यू व्हाट इज गुड फॉर यू। So I must thank Mera.com, Meradoc.com. You have done a very big service to DAV and to the society by starting this. और जहां तक हर्ष जी का तल्लक है, मैं आपको एक बात बता दूं, हर्ष जी को जितनी बारी भी कोई भी देखता है तो one can stand up and say कि here is a man. And DAV here, because of his father, would like to take the credit of having Dr. Harsh Mahajan as the thorough gentleman produced by DAV. Maybe he's not a student of DAV. Okay, no problem. लेकिन DAV का सारा कल्चर इनमें है। और हमारे PR गुप्ता जी ने जिस तरीके से इनको ट्रेन किया, इनके अंदर संस्कार भरे, वो सब पूरे के आर्य समाज और DAV के संस्कार इनमें है। मैं डॉक्टर महाजन आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और आपके माध्यम से सारे मेरा डॉक का सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने मिलकर मेरे DAV की शंकाएं दूर करी। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, President sir, for such encouraging words. I think we may have to really look into all the questions and see how we can again deliberate on the questions which are being asked, and still the questions are coming. And but since we have already taken more than half an hour more, meaning it was 1 hour, now we have crossed 1.5 hours. Thank you so much for spending so much of time with us. I can understand that these are the days when your hands are full. Still, you could take out some time from your busy schedule and be with us. From DAV College Managing Committee, DAV United Foundation, and the office bearers and the management of DAV, I really thank you all from the core of my heart, and I wish that we together will make a difference as far as the health parameters are concerned. Thanks a lot and namaskar. Thank you so much. Thank you, Ji. Thank you. Thank you.